বাংলার ক্যারাটে খেলোয়াড়রা বিশ্বের দরবারে নজির সৃষ্টি করে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছেন। সম্প্রতি মালয়েশিয়ার 14তম সাইলেন্ট নাইট ক্যারাটে কাপ 2025 অনুষ্ঠিত হলো। মালয়েশিয়ান ক্যারাটে ফেডারেশনের অনুমতিক্রমে টিটি ওয়ানসা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হলো 14তম সাইলেন্ট নাইট ক্যারাটে কাপ 2025, যেখানে বাংলার ক্যারাটে খেলোয়াড়রা দুর্দান্ত পারফর্ম করে দেশের জন্য গৌরব বয়ে এনেছেন। এই জমকালো অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত ছিলেন, যার মধ্যে রয়েছে মালয়েশিয়ার অলিম্পিক কাউন্সিলের মহাসচিব জনাব নাসির আলী। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন হংসি প্রেমজিৎ সেন, মালয়েশিয়ান কারাতে ফেডারেশনের সভাপতি দাতুক উইরা, মালয়েশিয়ানের কারাতে ফেডারেশনের সহ সভাপতি সেনসেই আলী ভালাগান সহ অন্যান্যরা। ভারতের দুর্দান্ত জয়। ভারতীয় দল মোট 42টি পদক জিতে আন্তর্জাতিক মঞ্চে তাদের দক্ষতা প্রমাণ করে। এর মধ্যে বাংলার খেলোয়াড়দের অবদান ছিল 12টি পদক। ব্যক্তিগত পারফরমেন্স, শিবম পোদ্দার সিনিয়র কুমিতে স্বর্ণপদক জিতে ইতিহাস তৈরি করেছেন। তিনি মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর এবং ভারতের হেভি ওয়েটদের পরাজিত করেছিলেন। সিনিয়র মহিলা হিসেবে আশিকা ঘোষ কৃতিত্ব দেখিয়েছে। কোচিং এবং নির্দেশনা ভারতীয় দলের এই সাফল্যের পেছনে মূল কারণ ছিল বিশ্বখ্যাত কোচ হংসি প্রেমজিৎ সেনের নির্দেশনা। তার অভিজ্ঞতা, নিষ্ঠা এবং নেতৃত্ব খেলোয়াড়দের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে সহায়তা করেছে। ভিআইপি প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কারাতে ডো অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের সাধারণ সম্পাদক হংসি জয়দেব মণ্ডল এবং সহকারী কোচ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন সেনসেই শাহবাজ খান। 14th Silent Night International Karate Championship. It is one of the biggest, prestigious karate event in Asian level, because in this championship you will get lots of Asian medalists, Asian Games medalists, and ये tournament में हम लोग का बंगाल का कई सारे बच्चे लोग गए थे, and the most remarkable performance senior में अगर कोई मेडल ले आता है, that is something very remarkable, and इसमें शिवम पोद्दार जो गोल्ड लेके आया है और विशिका घोष जो सिल्वर मेडल लेके आया है। रिमार्केबल इसलिए बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज मलेशिया इज अ हब ऑफ इंटरनेशनल कराटे। यहाँ पे इतना अच्छा प्लेयर सीनियर लेवल में है, मैं आई कैन नॉट एक्सप्रेस। जैसे ओइशिका घोष सेमीफाइनल में मलेशियन नेशनल गेम्स चैंपियन, मलेशियन कराटे चैंपियन उसको हराया है। इज नॉट एन ईजी जॉब। शी वॉज एक्सट्रीमली गुड, एक्सट्रीमली बेस्ट, बट स्टिल आवर प्लेयर कैन डू एनीथिंग, बिकॉज हिंदुस्तान कैन डू एनीथिंग। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो मुमकिन नहीं है हिंदुस्तान में। और स्पेशली इन सीनियर लेवल शिवम पोद्दार done an excellent job with Malaysia, Singapore, and especially in the final it was India versus India, and India का कई नामचीन प्लेयर है, 7 बार वो मेडलिस्ट है, साउथ एशिया का गोल्ड मेडलिस्ट है, but luck was not there with him. Luck was with Shivam Poddar and he got the gold medal. So it's a unique achievement. और हम चाहते हैं कि মালয়েশিয়া के कराटे चैंपियनशिप में और भी बच्चे हम लोग का नेक्स्ट टाइम जाए और আচ্ছা রেজাল্ট করতে আয়। আমাদের সাব জুনিয়র বাচ্চাগুলো খুব ভালো প্র্যাকটিস করেছে এবং ভালো পারফর্ম করেছে, যেমন ইভান নন্দী, দেবাস ঘোষ, তারপরে আপনার শ্রেয়াস ঝা, কৌশিকী ঘোষ, এটা প্রত্যেকে খুব ভালো রেজাল্ট করেছে। এবং আরও কিছু বাচ্চা আছে যেমন সিলভিনা সাহা, রূপসা ঘটক, ইত্তিশা দে, অ্যানি দে, প্লাস হচ্ছে জয়জিৎ মণ্ডল এবং আয়ুষ্মান, এরা খুব ভালো রেজাল্ট করেছে। শ্রেষ্ঠমান ওরা খুবই ভালো রেজাল্ট করেছে। ওরা খুব উঠতি ছেলে, খুব 7 বছর, 8 বছর, 10 বছর বয়স। বাট যেটা আমাদের কাছে বেশি ভালো লেগেছে সেটা হচ্ছে আমাদের সিনিয়র লেভেল, যেটা খুব টাফ লেভেল হয় আর কি, যেটা এশিয়ান লেভেল। এখন কারাটেতে এশিয়ান লেভেলে একটা বিশাল জায়গাতে আছে। তো সেই এশিয়ান লেভেলের ছেলেদের হারিয়ে এসছে এবং মেয়েদের হারিয়ে এসছে, এটা আমরা খুব গর্ববোধ করছি। কেমন লাগছে আজকে? সত্যি খুব ভালো লেগেছে। আর সব থেকে বড় কথা, আমরা দুজন স্টেজে বসেছিলাম। আমরা যেহেতু অফিসিয়ালস, আমরা বেশি নিজেরা দেখাতে পারি না, তো তবুও এত বেশি ভালো লাগছিল যে আমাদের শিবম পোদ্দার এবং ঐশিকী ঘোষ এত দুর্দান্ত করে। ঐশিকী ঘোষ তো ব্যাড লাগাটা হতেই পারে স্পোর্টসে, ফাইনালে সুন্দরভাবে ফাইনালে উঠে ফাইনালটা একটুর জন্য কভার করতে পারিনি। বাট শিবম দুটো বেস্ট ফাইট এমনভাবে জিতেছে যে নিজেরা প্রচণ্ডভাবে গর্বিত অনুভব করছিলাম যে হ্যাঁ, এরকম ছেলেমেয়েরা যে এখানে আসছে, অতএব এরা যে এখানে এক্সপোজটা পাচ্ছে এটা ভীষণভাবে দরকার। এবং স্পেশালি হানসিও বললেন যে শ্রীলঙ্কা এবং মালয়েশিয়া এই দুটো খুব টাফ ফাইট ছিল। সে দুটো টাফ ফাইট এত সুন্দরভাবে
টাটটাকে এত ইজি করে জিতেছে, এটা হচ্ছে সব থেকে প্লেয়ারদের বড় গুণ। এবং ভালো প্লেয়ার হতে গেলে যে গুণটা দরকার সেটা ওর মধ্যে আছে, এবং সেটা আমাদেরকে গর্বিত বোধ করেছে, আমাদের বাংলাকে, আমাদের ইন্ডিয়ান কারাটেকে। এবং আমরা আশা করবো যে ঐশিকী এবং শিবম আরও অনেক বড় জায়গাতে যাবে, আমরা সেই আশায় বসে আছি। মালয়েশিয়া আমার ফার্স্ট একটা ইন্টারন্যাশনাল স্টেজ, খুবই একটা ফেনোমেনাল স্টেজ ছিল, যেখানে প্রচুর দেশ থেকে প্লেয়ার এসেছিল, সেখানে আমি সিলভার পাই। ইনিশিয়ালি ইয়েস, বাট হানসির মতন একটা ফাদার ফিগার থাকে, মানে যখন আছে সেখানে মা বাবার অভাবটা তিনি বুঝতে দেননি। যেখানে তুমি দেখতে পাচ্ছ এত মানে বক্সে এত বড় বড় কোচ, বিদেশি কোচরা আছে বসে আছে, সেখানে তোমার কোচের সঙ্গে বিদেশি কোচের কি পার্থক্য তুমি অনুভব করো? আমি কোনো পার্থক্য ইনিশিয়ালি পাইনি, কারণ হানসি ইজ দি বেস্ট। হানসি কাছে ট্রেনিং করেছি, হানসির কাছে এতদিন আছি, আমার মনে হয় না যে কোনো বিদেশি কোচের সাথে হানসির তুলনা করা যেতে পারে। না, যেখানে দেখা যাচ্ছে একটা বিদেশি, যেখানে আরো ওদের স্ট্রাকচার অনেক কিছু বা অনেক ওদের ইয়েটা থাকে, তো সেখানে দাঁড়িয়ে তোমার কোচের সঙ্গে কোনোটা কি তফাৎ পেয়েছো? না, হানসির ট্রেনিং মানে হানসিকে বিশ্বাস করা ইজ লাইক trusting God himself. So therefore I didn't find any kind of difference initially at that stage. एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ बिफोर द टूर्नामेंट, मतलब वहाँ जाने से पहले बहुत ज़्यादा नर्वसनेस था, डर भी था थोड़ा बहुत, क्योंकि आफ्टर ऑल ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट था, और इंटरनेशनल टूर्नामेंट वो भी इतने बड़े लेवल पे, क्योंकि मलेशिया, जैसे हांसी ने भी बताया, मलेशिया कराटे का हब है एशियन लेवल पे। वहाँ पे जिन्होंने ये टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ किया था, सेंसी अरिवलंगन, उनके ही कई बहुत सारे एशियन गेम्स मेडलिस्ट, एशियन चैम्पियनशिप मेडलिस्ट प्लेयर, मलेशियन नेशनल चैम्पियन प्लेयर्स जो है मेरे कैटेगरी में भी थे, और भी बहुत सारे कैटेगरी में थे, बहुत अच्छे प्लेयर थे वहाँ पे। और ऐसे लेवल पे फर्स्ट टाइम खेलना इंटरनेशनल टूर्नामेंट बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करता है। लेकिन नर्वसनेस था, उसके साथ कॉन्फिडेंट भी था, खुद के ऊपर नहीं, अपने गुरु के ऊपर, हांसी के ऊपर, कि उन्होंने जो सिखाया है, वो जैसे प्रिपेयर करवा रहे हैं, जैसे प्रिपेयर उन्होंने करवाया है पहले, उसको कोई नहीं आ सकता, उसको कोई नहीं रोक सकता। और डेफिनेटली वहाँ पे बहुत अच्छे प्लेयर होंगे, लेकिन हांसी ने जो सिखाया उसको रोकना बहुत मुश्किल था, क्योंकि और इवन बिफोर माई मैच, मेरा मैच जो था मेरे मैच में कैटेगरी में सबसे फर्स्ट फाइट ही मेरा था, और जब मेरा मैच स्टार्ट होने वाला था, ठीक से 2 मिनट पहले मैंने देखा कि हांसी इज़ हैविंग हिज लंच दैट टाइम, और जैसे ही मैं नेम कॉल आउट हुआ, उन्होंने अपना लंच साइड में रखा और वो सीधा दौड़ के आ गए। जब हम लोग नेशनल्स में भी जाते हैं तो ही इज़ ऑल्सो रेफरी कमीशन चेयरमैन फॉर कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे रूल्स के वजह से वो हमारे साथ रहते हैं, लेकिन ड्यूरिंग मैच गाइड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रूल्स के अगेंस्ट है वो। लेकिन वहाँ पे मलेशिया में भी हांसी गेस्ट ऑफ ऑनर थे, लेकिन इसलिए हांसी मुझे उस टाइम ड्यूरिंग माई फाइट मुझे सपोर्ट कर पाए, गाइड कर पाए। वो तुरंत मेरे रिंग के सामने आए, मुझे अश्योरेंस दिया कि वो मैं हूँ तुम्हारे साथ। वो एंड टू स्टार्ट, बिफोर माई मैच, ड्यूरिंग माई मैच, आफ्टर माई मैच, एवरी टाइम तो वो थे। और मैं बस ये बोल नहीं रहा हूँ, मानता हूँ दिल से कि इट वॉज हिम ऑन द tatami, ऑन द मैट, नॉट मी, क्योंकि जितने भी पंच किक्स थे वो मेरे नहीं हो सकते वो, क्योंकि इतने अच्छे प्लेयर्स को फर्स्ट राउंड मलेशिया के साथ 10-2, सेकेंड राउंड अगेन मलेशिया के साथ 9-5, थर्ड राउंड सिंगापुर अराउंड 6-1, देन फोर्थ राउंड अगेन मलेशिया 8-0, एंड देन फाइनल में इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट प्लेयर इन माई कैटेगरी, जो 7 टाइम्स नेशनल मेडलिस्ट है मेरे कैटेगरी में, साउथ एशियन गोल्ड मेडलिस्ट है। हांसी की वजह से ही मैंने वो मैच जीता 3-1 में। मैं तो खुद भी नहीं सोच सकता कि मैच जीतूंगा, लेकिन डेफिनेटली हांसी की वजह से ही हुआ है। शुभम भाई, इतना बड़ा इंटरनेशनल मैच है, तो यहाँ पे जाने के लिए, आने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए बहुत खर्चा होता है, कैसे मैनेज किया? हाँ, ये तो बहुत सही बात बताया आपने कि खर्चा डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होता है। हर इंटरनेशनल ट्रिप में, टूर्नामेंट्स में बहुत ज़्यादा एक्सपेंस लगते हैं। इस टूर्नामेंट का ही एक्सपेंडिचर अराउंड 75,000 था। मेरा खुद का एक्सपेंडिचर 76,000 समथिंग रुपीज़ था, जो कि डेफिनेटली मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं है। इससे पहले मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, सिर्फ ये टूर्नामेंट नहीं, मैं जब से हांसी के पास हूँ, 2011 से मैं हांसी के पास हूँ, और 2013-14 से हांसी ने मेरा फीस लेना बंद कर दिया था। और नॉट ओनली फीस, तब से लेके अभी तक मैं जितने टूर्नामेंट्स खेलता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, उसका
ट्रेन फेयर, होटल अकोमोडेशन, फूडिंग, एंट्री फीस, एवरीथिंग सब कुछ वो देखते हैं। मलेशिया टूर्नामेंट का भी पूरा जो एक्सपेंस है ये उन्होंने ही देखा था, उनके वजह से ही ये हो पाया। मतलब बोलते वक्त भी मैं लड़खड़ा रहा हूँ, क्योंकि ये कोई इंसान ऐसे नहीं कर सकते, वो भगवान ही है जो इतना सेल्फलेस होकर के किसी के लिए इतना कर सकते हैं, तो ये उनके वजह से ही पॉसिबल हुआ। हम लोग ऐसे रिपोर्टर बहुत जगह जाते हैं, आना जाना करते हैं, बहुत जगह सुना ही मिलता है कि यहाँ पे मतलब सब जगह खाना वाना ठीक नहीं रहता है, सब इंतजाम ठीक नहीं रहता, तो यहाँ पे कैसा था? नहीं, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा अच्छा, हम लोग को 3 स्टार होटल में अकोमोडेशन मिला था। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों बुफे सिस्टम में था। जिस दिन हम लोगों का इवेंट था स्टेडियम में हम लोग थे, तो वहाँ पे भी होटल से हमारे लिए लंच आ गया था। क्योंकि हांसी हमेशा अपने स्टूडेंट्स के लिए सोचते हैं 24/7 एवरी टाइम, कराटे के लिए, अपने स्टूडेंट्स के बेटरमेंट के लिए, तो जहाँ भी रखेंगे वो बेस्ट ही रहेगा। और बहुत ज़्यादा अच्छा था, थीम पार्क वगैरह था, वाटर पार्क वगैरह था, सब एवरीथिंग वाज वेरी गुड। हम लोग जैसे सुनते हैं विदेश में बहुत अच्छा कोचिंग मिलता है, तो वहाँ पे आप गए, बहुत कोचिंग दे, मैंने कोच देखा है, तो क्या फ़र्क मिला है आपको? कोचिंग कुछ वहाँ से सीख मिला या यहाँ से कुछ क्या मिला है आपको कोचिंग? नहीं, एज अ प्लेयर सीखने को डेफिनेटली मिलता है, हर मैच में मिलता है, लेकिन कोचिंग में नहीं। क्योंकि मैं जैसे मैंने बताया 2011 से मैं हांसी के पास हूँ, तो उन्होंने जैसा अभी तक ट्रेनिंग दिया है, मुझे कभी लगा ही नहीं कि मुझे किसी और की ज़रूरत है या कहीं और सीखने की ज़रूरत है, इंटरनेट से सीखने की ज़रूरत है या यूट्यूब से सीखने की ज़रूरत है, कभी नहीं लगा। क्योंकि आफ्टर ऑल उनके ट्रेनिंग के अंडर में ही मैंने सीख करके और उनके सपोर्ट से ही मैं फॉरेन प्लेयर्स को, मलेशियन प्लेयर्स को, सिंगापुर प्लेयर्स को, इंडिया के टॉप प्लेयर्स को मैंने मलेशिया में जाके हराया है। तो उनको ज़रूरत है हांसी का अंडर में ट्रेनिंग लेना, मुझे नहीं। तो एक्चुअली आपने जब आप बोला कि यूट्यूब, फेसबुक वगैरह, इससे सही में ट्रेनिंग मिलता है क्या? नहीं, एक्चुअली जिनके पास लैक ऑफ नॉलेज होता है, नॉलेज जिनके पास नहीं होता है, वो लोग ऐसे करते हैं यूट्यूब में देखना, लेकिन उसमें देख करके आप कभी एक प्लेयर नहीं बन सकते। वो आप एक और यूट्यूबर बन जाएंगे कुछ व्यूज़ के साथ, लेकिन कराटे प्लेयर तो आप कभी नहीं बन सकते, प्लेयर नहीं बन सकते। उसके लिए आपको कोच चाहिए जो आपको गाइड कर सके, ना ही सिर्फ स्पोर्ट्स में, ज़िंदगी में भी, जो हांसी हमेशा करते हैं हम लोगों के लिए।